بیٹھ جاؤ. وعلیکم السلام. نعم نعم. خوش آمدید عمر، خوش آمدید. سلام ہو خاندان امیہ کے ہرے بھرے چمن پر. آبا یزید شداد کی جنت سے کم نہیں ہے. دیواروں کے کان نہ ہو تو جرت کروں کہ تم نمرود سے کم نہیں ہو. اگر تم انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرو تو سب سے پہلے سجدہ میں کروں گا. فی الحال میں ایک معزول امیر کے علاوہ کچھ نہیں ہوں عمر. جب تک علی کی ذوالفقار شام نہ آ جائے میں امیری کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا کرو گے؟ حکومت سے پہلے تجارت کرتے تھے. تو بلبلے اعجاز لے جاؤ گے یا فولاد؟ بلبلے کیوں، فولاد لے کے جائیں گے. سمجھ گیا تمہارا مقصد، سمجھ گیا. سچ میں تمہاری ماں ہندا نابغہ تھی. تم بھی نابغہ کے فرزند ہو. تمہارا بھائی ہوں. اب رہنے دو. قاصد علی کی کوئی خبر ہے؟ آیا نہیں آیا؟ آیا تھا، جریر نام کا تھا. امیر شام بھی آیا تھا لیکن شامیوں نے اسے شام کے دروازے ہی سے بھگا دیا. مجھے پتا تھا یہ شخص کبھی معاملہ نہیں کرے گا. ہمارے دوست کے خون بھرے کرتے کا کیا ہوا؟ وہ اپنی جگہ ایک کعبہ ہے. شامی بڑی تڑپ کے ساتھ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں. 4 کعبہ ہے اور خلیفہ بھی 4. ایک خلیفہ سرخ اونٹ پر سوار، دوسرا خون بھرا کرتا اٹھائے گھر میں پیکار، تیسرے کے ہاتھوں میں 2 دم ذوالفقار، اور چوتھا کعبہ سنگ و خاک کی بس بنی ایک دیوار. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. تم ابرہا اور ابابیل کے قصے پر یقین رکھتے ہو؟ ختم رسول کے معجزے پر اعتراض نہ کرو عمر. اس مقدس نما عوام کے سامنے ہماری حقیقت کھل جائے گی. میری دستار کو مت چھوؤ، عقل ہے میری اس میں. ٹھہرو. سب سے مضبوط قلعہ وہی ہے جس کی اونچائی پر خون بھرا کرتا لہرا رہا ہو. ذوالفقار علی کو معمولی مت سمجھو عمر. فتح خیبر بھی یاد رکھو. ہمارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس سے ذوالفقار کا توڑ
جہالت ذوالفقار بھی کیا کر لے گی. دیکھ لیا کہ لوگوں کی جہالت نے برسہا برس ذوالفقار کو علی کی غریب خانے کی دیوار پہ لٹکا دیا اور ہاتھ میں بیلچہ تھما دیا. یہ کالی کلوٹی کا یہ میری بات تو نہیں سمجھتی. کھل کے بات کرو عمر. اس محل کی دیواروں سے کوئی چیز پار نہیں ہوتی. جاؤ. ام المومنین عائشہ سب سے بڑی مخالف تھی خلیفہ کی. آج اسی خلیفہ کے خونخواہی کے لیے انہی جاہلوں سے ایک لشکر تیار کر لیا. دیکھ رہے ہو ابا یزید، یہ عوام صرف بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں. نہیں مانتے تو شرط لگا لو. بتاؤ کس پر شرط لگاؤ گے؟ حکومت فلسطین. لگاؤ شرط. بنی مچھلی بڑی لذیذ غذا ہے. ممبر پہ جا کے جتنی آیات و احادیث مظلوم کی حمایت اور اس کے انتقام کے بارے میں یاد ہو لوگوں کو بار بار سناؤ. تھوڑا چہرے پہ غم طاری کرو، کم کھایا کرو، داڑھی کو کنگھی بھی نہ کرو اور سونا بھی کم کر دو تاکہ آنکھیں ورم کر جائیں. تم جانتے ہو میں اپنے پیٹ پر ظلم نہیں کرتا. ابا یزید خلیفہ بننا آسان تھوڑی ہے. پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تمہارے میدے کی جگہ چکی کا پتھر بھی ہوتا تو جواب دے چکا ہوتا. بتاؤ علی کا کیا کرو گے؟ میں نے سعد ابی وقاص سے پوچھا کہ قاتلین خلیفہ کون ہیں. کہنے لگے تلوار عائشہ نے کھینچی، طلحہ و زبیر نے اس پہ سیقل کیا، علی نے اس پہ زہر لگایا. قلم اٹھاؤ اور لکھو از معاویہ ابن ابی سفیان علی ابن ابی طالب کے نام. اور کیا لکھوں؟ اور کیا لکھو گے؟ ابھی وقاص والی بات لکھ دو. معاویہ کی جانب سے علی کو پیغام. معاویہ یعنی شام، علی یعنی مدینہ. دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوا امیہ سے ہاشم کی جانب. زیادہ لمبی عبارت کی ضرورت نہیں تھی، 2 مختصر لفظوں میں ایک دیوان کے برابر لکھ دیا. چلو بیٹا اٹھاؤ اٹھاؤ.
बगैर तलवार के क्या कत्ल का आए हो? नौकर का क्या कसूर? मारने वालों को पहचाना? कैसे पहचानता? वो सब के सब नकाब लगाए हुए थे और मैं रहा मुसाफिर। अगर चेहरे खुले भी होते तो भी मैं न पहचानता। तुम्हें जंग का लुक्मा बनाया है बेनवा। तुम पर हमला करके इसलिए जख्मी किया है कि जब तुम अपने आका के पास जख्मी हालत में जाओ तो वहां कहा जाए कि अली के लोगों ने मुआविया के कासिद के साथ क्या किया है। जाओ उस कोठरी में आराम करो और जब रात की तारीकी छा जाए तो जंग की आग लगाने वालों से बचकर शाम रवाना हो जाओ। याद रहे, जख्मियों की देखभाल और असीरों का ख्याल रखना यह अली का शिवा है। और माविया से कहना कि अली ने तेरा न लिखा हुआ खत पढ़ लिया है और उसका दंदान शिकन जवाब रवाना करेंगे। या अली, उस्मान के खून भरे कुर्ते ने शाम के बेजानों को भी गिरिया करवा दिया। शाम की औरतें अपने बच्चों को अली के नाम से दशनाम सिखाते हैं और शाम के बूढ़े और जवान उन्हें जिगर से तलवारें बना रहे हैं ताकि आपको कत्ल करें। या अली, ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अली से उस्मान का बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह की पनाह उस्मान के खून से। تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن، بی دود باد آتش، بی خاموشی باد خورشید. تاریده باد تیر आप लोग अंदर आके दरवाजा भेज दीजिए। देखा तलहा, ये वो सरदार है जिसने ईरान के अफसानवी दरवाजे अरब के लिए खोले। आज अपना दरवाजा अरब पर बंद कर रहा है। मैं तो इस शोर और शराबे से तंग आ गया हूँ तला। मैं तलहा हूं। आइए, कोई फर्क नहीं इस नफसा नफसी और जुदाई के माहौल में तुम दोनों का साथ रहना खुशी का बायस है। इस इत्तेहाद को बचाकर रखो तलहा। खुशामदीद। क्या चाहिए आप लोगों को? ये क्या पढ़ रहे हो? मुझे मजूसी न समझो, ये अविस्ता है। क्या ये माल गनीमत है? हाँ, ये सब हमारे ईरान पर हमले की यादगार है। ये सारे तोहफे एक बूढ़े आदमी की यादगार है जो यज़्द के एक जंगल का रहने वाला था। एक बार उसने मेरी इख्तिदा में नमाज पढ़ी थी और मैं सैर तक उसकी दुआएं सुनता रहा, जो कभी नहीं भूल सकता। मुझसे तवक्को न रखना कि मैं तुमसे हालात पूछूंगा। आज माविया का कासिद मदीने में जंग का झंडा लहरा रहा था। उसे मौत की हद तक मारा पीटा गया। मैं तो अपने घर के रोशनदानों को गारे से बंद कर लूंगा। बताओ तुम दोनों क्या करोगे? मैं मक्का जाऊंगा। अच्छा, तो उम्रे की नीयत से जा रहे होंगे? जी, उम्रे की नीयत से। उम्मुल मोमिनीन आयशा ने उम्रा सबकी तरफ से अदा कर दिया है। इल्म इंसा की किताबों में एक 3 कोने वाला नक्शा होता है जिसे मुसल्लस कहा जाता है, जिसका पहला कोना आयशा है, दूसरा कोना
माविया है और तीसरे कोने में तुम दोनों हो। तलाओ जुबैर, अब आसानी से अली का रास्ता बंद कर सकते हो। हम साद, हम दोनों तुमसे मशवरा करने के लिए आए। साद, हमारी मदद कीजिए। तुम जैसे नाकाम खुलफा की मैं क्या मदद कर सकता हूं? मेरी अगर सुनो तो अली की बैत पर कायम रहो। बैत पर कायम रहना यानी अनकरीब होने वाले जिहाद में शिरकत करना है, जिसमें अपने अजीजों को कत्ल करना या खुद हलाक होना है। हलवा बनाएंगे हम और खाएंगे दूसरे। तो फिर यहीं रुक जाओ। रुकने के लिए एक नया बहाना बनाओ और अली से कहो कि तुम्हें ऐसी तलवार दें जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों में फर्क रखती हो। अगर अली चाहें तो इस मोहम्मे को हल कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं साद। तो क्या उनकी जुल्फकार का मुकाबला कर सकते हो? अगर तुम जैसे हमारा साथ दें तो तुम हमारे साथ मक्के चलो साद। अच्छा, तो तुम एक थके हुए सरदार को वरगलाने आए हो? उम्मुल मोमिनीन को तुमसे उम्मीदें हैं साद। फिर तुम किस दर्द की दवा हो? मेरे लिए गुज़िश्ता फतूहात काफी है। ताउस के पद तो तुम्हें चाहिए। जहमत करो और हिंदुस्तान जाकर ले आओ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। تاریده باد تیرگی تیرگون از تاریک خانه تن بی دود باد آتش بی خاموشی باد خورشید تاریده باد تیر یہ کفر بک رہا ہے زبیر۔ خاموشی باد خورشید بی دود باد ख्याल रखना, दरवाजे को आहिस्ता बंद करना, समझे? उसकी आवाज से मुझे अजियत होती है। साद बिल्कुल बदल गया, दीवाना हो गया है, यकीन नहीं आता। रुखसार अनार की तरह सुर्ख और पैर घोड़े की ताकत लेकर आए हैं। वाली कूफा ने किस बेवा से अख्त की है? जूते वही हैं। डरता हूं कि मेरी मसरूफियत की वजह से मेरी बीवी मुझे ना छोड़ दे। बेवा औरतों से शादी तो ये तुम बुजुर्गों की रस्म है, जो खूब खाते हैं और खूब सोते हैं। मैं तो अपनी अहलो अयाल का मुश्किल से पेट भरता हूँ। खुश आमदीद। अमीरी के जूते तंग थे या ढीले मोमिन? कब दरिया का रुख करोगे और इन फटे पुराने जूतों को फेंकोगे? मैं तो इन जूतों से मानूस हूँ तलहा। अपनी आदत को तर्क नहीं कर सकता और मोहब्बत को भी कब्र तक साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी रियासत कूफा का क्या हाल है? माशूक का हाल तो अपने साथ है, आप अपना हाल बताओ। जब इन सख्त और मजबूत पैरों को डराया जा सकता है, फिर तुम्हारे नरम और चर्बी वाले पैरों का क्या हश्र होगा। अगर कूफा जाने का इरादा रखते हो तो तुम लोहे के जूते पहन कर जाना। ये थी तुम्हारे जूतों की बहस मोमिनों। देख रहे हो तलहा, अली ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हर ऐरा गैरा हमारे मुंह आ रहा है। इन लोगों से हमारी आखिरी मुलाकात थी जुबैर। या अली, रुखसत होने आए हैं। उम्रे का इरादा है।
तजदीद बैत करो। अस्मा, अस्मा अपने कामों में मसरूफ थी। सफर के लिए ग़िज़ा और कपड़े जमा रही थी। अचानक मेरा दिल टूट पड़ा और मैं रोने लगी और तुमने मुझे आवाज दी। अस्मा, अस्मा, अब्दुल्ला, जुबैर हमारा बेटा। आहिस्ता बोलो अस्मा, पड़ोसी सुन लेंगे तो हमेशा की मुसीबत हो जाएगी। मैंने अपनी सारी जिंदगी ख्वाब देखे हैं, ख्वाब ख्वाब, भयानक ख्वाब। जुबैर, आहिस्ता अस्मा, तुम अबू बकर सिद्दीक की बेटी हो, किताबो शमशीर की परवरदा। आम और देहाती औरतों की तरह ख्वाब और ख्याल की बातें मत करो। इससे पहले कि किसी की बेटी रहूं मैं खुद हूँ। इससे पहले कि किसी की बीवी रहूं मैं अस्मा हूँ। काश मैं फकीर तरीन अरब की बेटी होती। काश मेरा शोहर एक फकीर अरब होता, ताकि आज अपने जिगर के टुकड़े को ले जाने पर मजबूर ना होती और नाकाम खुलफा की हवा और हवस का शिकार होती। हम मक्का जा रहे हैं अस्मा, ताकि उम्र अदा करें, फिर लौट आएंगे। तुम तख्तो ताज की तलाश में हो। बताओ क्या कमी है हमारी जिंदगी में जो तुम अपने और अपने घर वालों पर कुर्बान कर रहे हो। मैं पानी से अपना पेट भर लूंगी, तुम नमाज रोजा मस्जिद में मसरूफ रहो। चलो उम्रे को छोड़ो। तुम्हें अपनी बहन से मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं? अस्मा, ज़ौजे रसूल खुदा की मदद न करना गुनाह कबीरा है। जान दे दूंगा, लेकिन दीन खुदा की मदद से मुझे मत रोको। उम्मुल मोमिनीन की गुर्बत दीन मोहम्मद है। मैं आयशा को पीठ नहीं दिखा सकता अस्मा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ जुबैर। जहाँ तुम रहोगे वही मेरी कब्र होगी। कपड़े रख रही हूँ जुबैर, 3 कफन हम तीनों के लिए। कौन है इतनी रात में? मोहम्मद हूँ। कौन मोहम्मद? आजकल हर अरब के घर में मोहम्मद है। एक ही तो तेरा मामू मोहम्मद है। क्या चाहते हो मोहम्मद? कुछ चाहता नहीं, बस ये पूछने आया हूँ कि सैफुल इस्लाम अपने इस्लाम को छोड़ के सैफ कहाँ लिए जा रहा है? तुम्हारी शान के मुताबिक नहीं कि लोगों के दरवाजे खटखटाकर बूढ़ों की तरह वफादारी का दर्श देते फिरे। खालिसाना मशवरा देने, हुज्जत तमाम करने और अपनी बहन अस्मा से मिलने आया था। वरना तुम खूब जानते हो कि मोहम्मद और अली का दीन तुम्हारी तलवार का मोहताज नहीं है। महशर में मिलेंगे।
चुरा लिया, ऊंट को चुरा लिया, मेरे ऊंट को चुरा लिया, मेरा ऊंट चोरी हो गया, मेरे ताज्जुब है तेरे शोर पर। तू मुर्गा है या मुर्गी? आ तुझे अभी ज़िबा करता हूँ। क्यों रुक गई हुमा? मक्कातुल मुकर्रमा में सुर्ख बालों वाला अस्कर नामी ऊंट जाहिर हुआ, जिसने अपने सवार के हमरा खलीफा मकतूल के खून का बदला लेने का परचम उठाया हुआ था। उधर एक जानिब तलहा और दूसरी जानिब आले उमैया, जिनसे उनकी रियासतें छीन ली गई थीं, अपना लूटा हुआ खजाना ऊँटों पर लाद कर मक्के की जानिब रवाना हुए। मुआविया ने इस मार्के की आग को खूब हवा दी और तलहा और ज़ुबैर को लिखा कि अगर अली को हटा दो तो तुम्हारी बैयत खुद मैं और मेरे शामी करेंगे। बीबी उम्मे सलमा ने, जो रसूल अकरम की अज़वाज में से थीं, बहुत चाहा कि अपनी सौकन आयशा को समझाएं और उन्हें इस इक़दाम से बाज रखें, लेकिन कामयाब न हुई। दो मुतज़ाद ग्रोह बुग़्ज़ अली की बुनियाद पर उस ऊँट के गिर्द जमा हो गए और बहुत देर सलाह व मशवरे के बाद बसरे की जानिब रवाना हुए ताकि इराक़ को अपने एतमाद में लें। और इस तरह अस्कर, जो वही ऊँट था जिसे जमल कहते हैं, बसरे की जानिब रवाना हुआ। तुम्हें क्या लगता है मरवान, किसकी दस्तार का सिरा खिलाफत की तहतुल हनक बनेगा? मुझे यकीन है कि आले उमैया से नहीं है। वो जानता है। अब्दुल्ला, पेश नमाज कौन है? अब्दुल्ला। सैफुल इस्लाम जुबैर। मुतमईन हो? हाँ, ऐसे होना चाहिए। होना चाहिए? मोहम्मद, पेश नमाज कौन है? ज़ाहिरन तलहा ही होंगे, बेशर्त के सैफुल इस्लाम जुबैर नमाज न पढ़ाए।
عبداللہ آپ امامت کریں گے یا طلحہ؟ کوئی فرق نہیں. جو بھی پہلی نماز کی امامت کرے گا وہی خلیفہ ہوگا. نماز کے مصلی پر آپ بیٹھیں گے نہ کہ طلحہ. یہی محراب امامت آئندہ کے خلیفہ کی نشاندہی. لوگوں کو خلیفہ چاہیے تاکہ اس کی اقتدا کریں. ٹھہرو، ٹھہر جاؤ. اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. ام المومنین عائشہ کا فرمان یہ ہے، نہ طلحہ نہ زبیر، عبداللہ ابن زبیر. لو بھائی ہم تو چلے. کہاں؟ کہیں بھی جہاں یہ لوگ نہ ہوں. ام المومنین عائشہ کے ساتھ بیعت شکنی کر رہے ہو تم؟ کیسی بیعت؟ ان صفوں میں اگر تمہیں خدا نظر آ جائے تو میرا سلام پہنچا دینا. مومنین توجہ کریں. خلافت جیسے اہم منصب کو دو افراد کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ طلحہ اور زبیر دونوں بالحق والانصاف اس منصب کے حقدار ہیں تو حق یہ ہے کہ دونوں خلیفہ کے ساتھ رہیں. اور آئندہ خلیفہ وہ ہوگا جو خلیفہ مظلوم کے خون کا انتقام لے سکے. بھائیو، پسر ابو سفیان نے علی کی بیعت سے انکار کر دیا ہے. امت مسلمہ کی مصلحت کی خاطر جہاں تک ہو سکتا تھا ابو الحسن نے اس کا لحاظ کیا، لیکن افسوس کہ بنی امیہ ان خونوں کے بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ایام جاہلیت میں خود ان کی جہالت کی وجہ سے بہا. عربوں کا مقصد تھا کہ قرآن کے سائے میں برابری اور برادری کا معاشرہ قائم ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مقصد تک رسائی کی راہ اس سے کہیں طولانی تر ہو گئی ہے. لیکن نہ تو ہمیں اور نہ ہی قرآن و پیغمبر پر ایمان رکھنے والوں کو مایوس ہونا چاہیے. آخرت کی جنت کا راستہ دنیا کی جہنم سے گزرتا ہے. میں اس فرزند عرب گناہگار ماویہ کی وجہ سے ان لوگوں سے شرمسار ہوں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تلواروں کے حوالے کریں گے، اور ان ماؤں سے شرمندہ ہوں جن کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹوں کے انتظار میں دروازوں پر لگی رہیں گی. شرمندہ ہوں ان نقل کے باغات سے جو خشک ہو جائیں گے اور ثمر نہ دے پائیں گے. یہ ہمارے دل کی آواز ہے اور ہمارے مولا علی کا درد دل. جو بھی علی کی ولایت سے دل لگا چکا ہے وہ کھڑا ہو جائے. ابا یزید کو مولا علی کا جواب تلوار ہے. اور وہ گروہ جو سرخ بال جمل کے ہمراہ عازم بصرہ ہیں، یہ جماعت مقام رسالت سے اتصال رکھتے ہیں جن میں صحابی رسول اور پیغمبر کے گھر والے ہیں. کاش وہ حقیقت کو قبول کریں. علی کی دلی خواہش ان کی توبہ ہے. انشاءاللہ وہ توبہ کریں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مدینے کے لشکر کی سربراہی
मालिक अश्तर नकई करेंगे। मैं मदीने का रहने वाला नहीं, वहां किसी को नहीं जानता। जरूर कोई ना कोई मसलहत होगी मालिक। इब्ने अबा बकर, कूफा जाकर लोगों को जहाद की दावत दो। सवालिया निगाहों से देख रहे हो मालिक। मैं तुमसे ज्यादा कूफे के माहौल से वाकिफ हूं, कूफियों के मिजाज से बेहतर वाकिफ हूं। अशअरी बेहतर मेरे काबू में आ सकता है। काश इमाम ने मुझे कूफा भेजा होता। ये अली की सुन्नत है मालिक। वो जहां तक मुमकिन होता है कौम व कबीले की सरदारी से गुरेज करते हैं। वो हम और तुम जैसे बहादुरों के मोहताज नहीं हैं। अली के लश्कर में सबको इश्क खुदा के साथ तलवार चलाना होगी। कहीं खाली हाथ न लौटा दिए जाओ। ये कदम इताअत अली में उठे मेरे लिए यही काफी है। मैं तो इताअत अली में खुश हूँ। खाली हाथ या भरे हाथ की मुझे फिक्र नहीं है। मुझसे बहुत आगे हो सरदार। इमाम की मोहब्बत में तुम मुझे भी अपना रकीब समझना। في امان الله. في امان الله. मोहम्मद इब्ने अबू बकर, उन्हें उम्मुल मोमिनीन के रकाब में होना चाहिए था। शायद उम्मुल मोमिनीन का कासिद हो। एक अफसानवी जवान दिलावर जो एक अफसानवी बहन का भाई भी है। जवान मशहूर भी है और खूबसूरत। अगर अली की उम्मुल मोमिनीन से जंग हुई तो ये गैरतमंद जवान जो अली की गोद में पला बड़ा है क्या करेगा? बाप पर तलवार उठाएगा या बहन पर? ना सुन रहा हूं ना ही जवाब दूंगा।
बंदे खुदा किससे फरार कर रहे हो? शैतान से, तुझसे। क्यों अपने परवरिश करदा शैतान को मार नहीं डालते? खुदा के गजब का क्या करूं? उल्टी सीधी बातें न कर, जा कुछ देर बैठ के जिक्र कर। अगर जिक्र से ही काम बनने वाले होते तो उम्मुल मोमिनीन मक्के में ही रहती और खातिलीन खलीफा की मौत खुदा से चाहती। वो पहली औरत थी जिसने खलीफा से मुंह मोड़ा। अब इसमें कौन सी चीज पोशीदा है ये खुदा ही जाने। आप उम्मुल मोमिनीन के साथ हैं या अली के? किसी के नहीं। सारी उम्र सजदे की और कहीं ना पहुंचे। दीन की जंग दीन के साथ है। अशारी की नसीहतों ने आप पर असर कर दिया है। मोहम्मद एक दीन के पैगंबर थे या दो दीन के? तुम किसकी तरफ हो? अगर उम्मुल मोमिनीन की सौकन होती तो अली का दिफा करती। तुम अब से मस्जिद नहीं जाओगी। बाबा कहो अबा खुताम।